مولانا فضل الرحمان کا حکومت کی کوئی بھی تجویز ماننے سے انکار. کہتے ہیں علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. علماء کو علماء کے مقابل لایا جا رہا ہے. ریاست سے تصادم نہیں چاہتے, ہم مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں. یہ ہمیں کہیں اور دھکیل رہے ہیں. ہم قانون کی بات کر رہے ہیں. حکومت اس کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے. دوسرے ایکٹ پر صدر دستخط کر سکتے ہیں تو مدارس بل پر کیوں نہیں کر سکتے؟ ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد کیوں متنازع بنائی جا رہی ہیں؟ جو چیز طے ہو چکی اسے مستحکم کرنا چاہتے ہیں. یہ عدم استحکام کیوں لا رہے ہیں؟ چارسدہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ پارلیمنٹ اس بل کو پاس کر چکی ہے اور ہم جیت چکے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا تھا. ایف اے ٹی ایف, آئی ایم ایف اور مغرب مدارس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم گزشتہ روز حتمی اعلان کرنے جا رہے تھے, نہیں کیا. مارچ سے متعلق سوال پر بولے مفتی تقی عثمانی صاحب نے 17 دسمبر کو مدارس سے متعلق اجلاس بلایا. علماء مشائخ کی مدارس رجسٹریشن قانون میں ترمیم کی مخالفت. مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت برقرار رکھنے کی حمایت. کہتے ہیں حکومت کسی بھی دباؤ میں آ کر اس نظام کو تبدیلیاں ختم نہ کرے. موجودہ نظام تبدیل کرنے کی کوئی کوشش قبول نہیں ہوگی. اسلام آباد میں مدارس اصلاحات سے متعلق اجلاس میں علامہ طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پہ منظور. کسی بھی صورت ڈی جی آر ای کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہتے. اس نظام سے لاکھوں طلبہ کا مستقبل ہے. کسی بھی قسم کی قانون سازی سے متعلق تمام مدارس کے بورڈ کے قائدین سے مشاورت کی جائے. قرارداد کا متن. طاہر اشرفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے. اگر قوت کی بات کی جائے تو سب مدارس کے پاس لاکھوں طلبہ ہیں. خاموش رہے تو لاکھوں مسلمان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. سوال اٹھایا کہ ہم روز روز نئے قوانین بنائیں گے. علامہ راغب نعیمی بولے مدارس سے دہشت گردی کا لیبل ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. مفتی عبدالکریم نے کہا مولانا فضل الرحمان مدارس کے نمائندے نہیں, وہ سیاستدان ہیں. انہیں چاہیے علماء کرام سے معافی مانگے. ایسا حل چاہتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہو. علماء کرام کی تجاویز پر مشاورت کریں گے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات چیت کی ایک نشست ہوگی. نئے قانون میں ترامیم کی جائیں گی یا نہیں, مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا. کوشش ہے مدرسوں اور جامعات کے طلباء کو ایک چھتری تلے لایا جائے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا علماء و مشائخ کے اجلاس سے خطاب. کہا جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. اسی وزارت تعلیم کے تحت ایچ ای سی اور تمام جامعات ہیں. مدرسے کے طالب علموں کو سائنٹسٹ اور آئی ٹی ایکسپرٹس بنتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بولے مدارس کا طلباء کا مستقبل بہتر بنانا ہوگا. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا اصلاحات کا مقصد مدرسوں کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ ان سے مستفید ہونا ہے. یہ تعلیم کا معاملہ ہے اور وزارت تعلیم سے ہی منسلک کرنا ہوگا. مدارس رجسٹریشن پر مولانا فضل الرحمان کو مطمئن کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری. حکومت اور جے یو آئی کے بیک ڈور مذاکرات. رجسٹریشن کے حوالے سے نیا مسودہ جے یو آئی کو دے دیا. سینٹر کامران مرتضیٰ اور حکومت کی قانونی ٹیم کے درمیان مشاورت. جے یو آئی کو 2019 کا معاہدہ تسلیم کرنے سمیت دیگر آپشنز دیے گئے. وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کا آپشن. نئے قانون سازی پر وزارت داخلہ کے تحت بھی رجسٹریشن ممکن قرار دی. کامران مرتضیٰ نے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کر دیا مجلس شورا اور دینی مدارس کو اعتماد میں لے کر جواب دیں گے. ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں جامعہ اشرفیہ احمد وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم سے ملاقات. مدارس سے متعلق بل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم کا اسلام آباد میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم. شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا مستحکم ہوتی معیشت کسی کو تبداد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر اور ان کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی بھی ہدایت. کہا خیال رکھا جائے کہ کارروائی کے دوران کوئی بے گناہ شہری گرفتار نہ ہو. فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس. اسلام آباد جیل کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت. وفاقی پروسیکیوشن سروس کو بھی وزارت قانون کے تحت لانے کا کہہ دیا.
फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए। अगर ऐसा किया तो फिर इख्तियार समात का मामला ही हल हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात रोकने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा से मुकालमा करते हुए जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिया, आपका कोई प्यारा ज़ेर हिरासत नहीं, इसलिए ताख़ीर चाहते हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान के मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या अदालत का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट में मजीद समात कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, एमएनए आदिल बाज़ाई की रुकनीत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन का डी-सीट करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क किए कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? जस्टिस आयशा मलिक बोली, आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं। क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है ये तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। केस की समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। सोशल मीडिया पर रियासत और इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम, वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान पैनल कोर्ट के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वज़ारत दाखिला को समरी तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। बानी पीटीआई पर बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात आयद। एफआईए साइबर क्राइम विंग की इंक्वायरी के बाद फैसला किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के बयानात रिकॉर्ड करा दिए। साबिक़ खातून अव्वल की अदालत पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने केस की मजीद समात 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म आयद करने की नई तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। मुल्जिमान की इस्तदा पर एफआईए रिपोर्ट की नकूल फराहम कर दी गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमा मुसलसल पेश नहीं हो रही थी और शायद आइंदा भी पेश ना हो। बुशरा बीबी की खुद रोस्ट्रम पर जाकर अदालत को आइंदा समात पर पेश होने की यकीन दहानी। कहा, जब सजा हुई थी तो खुद चलकर जेल आई थी। तबीयत नासाजी और मुतादिद मुकदमात में जमानत लेने के बायस अदालत पेश नहीं हो सकी। आज भी अदालत में पेश हुई हूँ, आइंदा समात पर भी आऊंगी। शाम में एयरपोर्ट बंद होने से 600 के करीब ज़ायरीन फंस गए। फंसे हुए ज़ायरीन और शाम में मुकीम पाकिस्तानियों की इनखला के लिए इक़दाम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों की इनखला के लिए लबनान से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ का लबनानी हम मनसब से राब्ता। कहा, पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तानियों के शाम से इनखला के लिए लबनान से वीज़े जारी करने की दरख्वास्त। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, 600 हों या जितने भी पाकिस्तानी, सबको वीज़े देंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर को शाम से पाकिस्तानियों के फौरी इनखला की हिदायत जारी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से गौर। दमिश्क में सफारत खाने को हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। 24 घंटे मालूमाती डेस्क फाल रखने का भी हुक्म दे दिया। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। तहरीर अल शाम की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूस का शाम के मसले पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। बयान में कहा कि पूरे खित्ते पर शाम के हालात के असरात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कनाडा ने बशार अल असद से आलमी अदालत इंसाफ का सामना करने का मुतालबा कर दिया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि शाम में किसी को भी इस तरह के नताइज का अंदाज़ा नहीं था। ईरान ने शामी हुकूमत को सियासी मदद और मुशावरत फराहम की थी। अपोजिशन फोर्सेस से निमटने में शामी फ़ौज की जगह लेने का इरादा कभी नहीं था।
अदलिया का वकार मजरू नहीं होने देंगे। मुतल्लिका हाई कोर्ट दूर दराज की ज़िला अदलिया पर तवज्जो मरकूज करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर इजलास का एलामिया जारी। बलोचिस्तान के लिए ज़ेली कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़ेली कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इस्लाहात का एक जामी पैकेज पेश करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ज़िला गवादर का भी दौरा। इलामी के मुताबिक तुरबत, पंजगोर और चागी समेत दिगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। इजलास में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ भी शरीक हुए। वफाकी और गंडापुर हुकूमत आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त पेशावर के थाना शर्की में जमा कराई गई। IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त पुलिस लीगल ब्रांच को राय के लिए भेजी जाएगी। मौक़िफ़ अपनाया कि KP हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। IG इस्लामाबाद की सरबराही में पुलिस ने 5 अक्टूबर को छापा मारा। कार्रवाई के दौरान KP हाउस में तोड़ फोड़ की गई। अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कई अफराद जख्मी भी हुए। ख्वाहिश है बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए। उम्मीद है मुंतकली की बजाय रिहाई ही हो जाए। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है बुशरा बीबी खुद डी चौक पर अकेला छोड़ने वाली बात की खुद ही बेहतर वजाहत कर सकती हैं। PTI पर पाबंदी के सवाल के जवाब में कहा कि चादर देकर पाँव फैलानी चाहिए, फिर ना चादर रहती है और ना ही पाँव। मजीद कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते। बानी PTI से मिलूंगा तभी कुछ बता सकूंगा। पार्टी का जो भी लाया अमल होगा वो सबके सामने रखा जाएगा। बानी PTI किसी शख्स या इदारे का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं। उन्होंने आज तक जो हरकत की वो उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं, उन्हें कहीं और से नोटिस आते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिविल नाफरमानी, धरने और जलसे सिर्फ और सिर्फ साजिश है। ये नहीं चाहते कि किसी इदारे में इस्तेहकाम हो। मुझे नहीं पता कि बानी PTI की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावडा बहुत इल्म रखते हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। फैसल वावडा चाहें तो किसी भी सियासी पार्टी के सरबराह से मुलाकात कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफे का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें। मरियम नवाज की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स और शीजी तान अस्पताल आमद। MOUs पर दस्तखत। कैंसर के इलाज के लिए दरकार मशीनरी के बारे में ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ अस्पताल प्रोजेक्ट से आगाह किया। चीनी माहिरीन की मुआवनत से जदीद आलात और तरीके इलाज के आज़म का इजहार। कहा पंजाब में हेल्थ सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मरीज दोस्त और मौसर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की हामी। 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। बानी PTI के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मदारिस में बच्चे अगर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करें तो उनका मुस्तकबिल रजिस्ट्रेशन से बेहतर हो सकता है। वो कौमी धारे में आ सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन 200% होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान को सोचना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में मदारिस में आखिरी लिस्टों में है। आप मदारिस का इशू उठाकर पाकिस्तान को आखिरी लिस्ट से भी निकालने के मूड में हैं। तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। करप्शन का मर्ज हमारे समाज में एक बड़ी खराबी है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब। कहा इदारा बदउनवानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उन्हें इंसदाद बदउनवानी के अमल में शरीक करने के लिए जामे मंसूबा तैयार किया गया है। बदउनवानी के खिलाफ जंग एक मुसलसल अमल है। हमारी कामयाबी का इन्हिसार आवाम की इज्तिमाई सोच पर मुनहसर है। नौजवानों को करप्शन के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा करना होगा।
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی چینی کاروباری وفد کے ساتھ ملاقات، زرعی ترقیات اور بائیو ٹیکنالوجی کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صحت کی ٹیکنالوجی، دوا سازی اور طبی سامان کی سپلائی چین میں تعاون پر گفتگو کی۔ اجلاس میں ہر شعبے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی سرمایہ کاروں نے شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ شاہینوں کے کڑے امتحان کا وقت آن پہنچا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کا میدان کل سے سجے گا۔ دونوں ٹیمز کل پہلے ٹی20 میں آمنے سامنے ہوں گی۔ ڈربن میں پاکستانی وقت کے مطابق میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ ٹی20 میں گرین شرٹس کا پلڑا بھاری، اب تک 22 میں سے 12 میچز جیتے، جنوبی افریقہ کو 10 میں کامیابی ملی ہے۔